Vasudevaya. I welcome you all to our channel, Moving Towards Our Roots with Dr. Lakshmi. We are on chapter 1 of Bhagavad Gita, which starts when the blind king Dhritarashtra asks his charioteer Sanjay about what is happening in the battlefield of Kurukshetra, where his family has accumulated for a grand yudh, a dharam yudh. First we see that how Dhritarashtra describes the army to his acharya. Then there is announcement of the war by the leaders on both sides. After that, as we see, the Mahayodha of Mahabharata, the Mahayodha of this Dharam Yudh, the third Panduputra, Sri Arjun, as soon as he gets himself ready, as soon as he picks up his bows and arrows and get ready to shoot his arrows, he is crippled with Vishad, with sorrow. Why? Because he sees all his family, friends, relatives ready for a battle which would eventually lead to destruction and misfortune. In the last video, in the last few verses, we saw that he was describing his bodily and his mental grief and bodily condition to his friend, as well as the charioteer of his chariot, Sri Krishna. He says whatever he is feeling, he tells him, and probably he wants Keshav, the killer of the Kesi demon, to kill his doubts, his grief, and put an end to his sorrow. Furthermore, in these upcoming verses which we'll be having in this video, there are few more verses spoken up by Sri Arjuna to Sri Krishna. So let's start. This is verse number 31st, chapter 1. Na cha shreyo anupashyami hatva swajanam ahave na kankshe vijayam Krishna na cha rajyam sukhani cha. As we learned, Arjun, a godly man, a pure devotee of Sri Krishna, has compassion for one and all. And here there are nobody else but his own family. So he is full of grief and sorrow and passion towards them. So he says, na cha, na nahi, cha or, shreya, kalyan, good, worthy, anupashyami. Anupashyami वर्ड जो है बना है पश्य शब्द से. पश्य मतलब देखना. अनुपश्यामी फोर्सी करना, देखना, पहले से ही किसी चीज़ का एक जजमेंट, एक असेसमेंट करना. हत्वा, हत्वा, हत्वा यानी कि मार कर. स्वजनम, स्वजनम, अपनी फैमिली को, अपने लोगों को. आहवे, आहवे इस युद्ध में, इन दिस battlefield. न कांक्षे, न ही कांक्षे, कांक्षा, आकांक्षा, इच्छा, आकांक्षा करता हूँ, डिज़ायर करता हूँ, विजयम, कृष्ण, न च और न ही, राज्यम, राज्य के, सुखानी च, सुखों को, भोगों को, ऐश्वर्य को, हैप्पीनेस को. अर्थात हे कृष्ण, इस युद्ध में आहवे, अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा करता हूँ. I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. Generally एक कॉमनर जो होता है वो अपनी हैप्पीनेस, अपने फॉर्च्यून, अपनी वेल्थ को
तभी इंजॉय कर पाता है जब उसके साथ उसकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, उसकी रिलेटिव्स हो, या तो वो उनके साथ उस चीज़ को मिलकर इंजॉय करता है या फिर उनके सामने वो फ्लॉन्ट करता है उस चीज़ को, सो दैट दे बिकम जेलस, या फिर जो मिश्रित फीलिंग्स होती हैं, या तो वो उनके साथ इंजॉय करता है या वो उनके अगेंस्ट इंजॉय करता है। दोनों ही स्थिति में, मित्रता और शत्रुता दोनों ही स्थिति के लिए हमको लोग चाहिए अपने आसपास, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। सेम स्टैंड्स विद अर्जुन, इवन दो he is a devotee, but still, like a commoner, he has this desire that okay, जब ये सब लोग ही नहीं रहेंगे मेरे पास, तो मेरा इस धन, ऐश्वर्य, राज्य का क्या लाभ। इस सब में वो अपनी ड्यूटी को भूल जाता है, एंड लाइक अ कॉमन मैन ही थिंक्स what we all would generally think. Next, let us come to verse number 32. Kim no rajen govindam, kim bhoger जीवितेन वा, ये शाम अर्थे कांक्षितम, नो राज्यम भोगः सुखानी च। इसको मैं फिर से संधि तोड़कर अर्थों के साथ पढ़ूंगी। किम क्या, नो हमको, राजेन राज्य से, हमको राज्य से क्या, गोविंदम, गोविंदम शब्द जो है वो श्री कृष्ण के लिए है। गौओं की और हम लोगों की इंद्रियों को सेटिस्फाई करते हैं कृष्ण, तो वो गोविंदम है, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ गोविंदम वो इसलिए कह रहा है कि आप मेरी जो सेंसेस फील कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करिए, उनको सेटिस्फाई करिए। हे गोविंद, मुझे अंडरस्टैंड करिए। किम क्या, भोगैर जीवितेन ऐश्वर्य और जीवन से, वा, किम नो राजेन गोविंदम, किम भोगैर जीवितेन वा। हे गोविंद, हमें राज्य, भोग यानी ऐश्वर्य, सुख, इवन इस जीवन से भी क्या लाभ। ये शाम अर्थे कांक्षितम, नो राज्यम भोगः सुखानी च। ये शाम जिनके लिए, अर्थे कार्य से, कांक्षितम चाहते हैं, नो हम, राज्य, भोग और सुखों को। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम इन चीज़ों की, राज्य की, ऐश्वर्य की, जीवन की, सुखों की इच्छा करते हैं, आगे, ओ गोविंदा, of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now ताइमे अवस्थिता, युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, आचार्यः पितरः पुत्रान् तथैव च पितामहा। आगे वो कहता है, जिन लोगों के लिए हम ये सब चाहते हैं, ता वे इमे यहाँ, हियर, अवस्थिता, खड़े हैं, अरेंज्ड हैं। कैसे अरेंज है? युद्धे, युद्ध के लिए, युद्ध में, प्राणान् त्यक्त्वा, प्राण छोड़ने के लिए, धनानि च, धन, ऐश्वर्य, धन हम मटेरियल धन के लिए भी यूज़ करते हैं और ऐश्वर्य, सुख के लिए भी धन यूज़ करते हैं। तो अपने प्राण, अपने धन, इन चीज़ों के मोह को छोड़ के वो यहाँ पे युद्ध करने के लिए अरेंज्ड खड़े हुए हैं। कौन है वो लोग? आचार्य, गुरु, पितरः, पिता, फादर्स के समकक्ष, चाचा ताऊ, पुत्रान, पुत्रों के समकक्ष, मेरे नेफ्यूज़ और मेरे बच्चे जो लगते हैं रिश्ते में, तथा एव च पितामह, तथा एव और ही पितामह, दादा, नाना। अर्जुन कहते हैं, जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं।
कौन है वो लोग? आचार्य, गुरु, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, यानी ओ मधुसूना, when teachers, fathers, sons, grandfathers, they are all arranged in this battlefield. They are ready to give up their life, give up their all wealth. They are ready for death in this battlefield. Now let us come to the next verse, verse number 34. Matulah, Shvashurah, Pautrah, Shyalah, Sambandhinah tatha. एता न हंतुम इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन। और लोग कौन खड़े हैं बैटलफील्ड में? मातुलह, मामा, श्वसुरः, ससुर, पौत्रः, सन इन लॉज, पौत्र ग्रैंडसन्स, श्यालः, ब्रदर इन लॉज, संबंधिनः तथा, और रिलेटिव्स। एतान, इनको, न, नहीं, हंतुम, मारना चाहता हूँ, हंतुम इच्छामि, मारना चाहता हूँ, मारने की इच्छा नहीं रखता हूँ। घ्नतो अपि, मेरा जीवन भी संकट में पड़ जाए। घ्नतो मतलब खुद मारे जाने पर भी, ये लोग अगर मुझे भी मार दें। घ्नतो अपि मधुसूदन, मधुसूदन शब्द यूज किया है मधु असुर को मारने वाले। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन इस टाइम काफ़ी मिजरेबल फील कर रहे हैं, हेल्पलेस, होपलेस, उन्हें नहीं समझ आ रहा है। उन्हें बस यही है कि मेरी फैमिली है, मुझे इसको सेव करना है, चाहे मैं खुद इस चीज़ में नष्ट हो जाऊं। वो कहते हैं, और कौन यहाँ खड़ा है? पौत्रगण, ससुर, मामा, साले, अन्य सारे संबंधी यहाँ खड़े हैं। इन सबको मैं मारने की इच्छा नहीं रखता, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। घ्नतो अपि एता न हंतुम इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन। These are standing in front of me, ready to give up their lives and properties. Why should I wish to kill them, even though they might be otherwise kill me? ये तो युद्ध है, अगर आप नहीं लड़ेंगे तो सामने वाला भी ज़रूरी नहीं है कि युद्ध के नियम का पालन करे, वो आप पे अटैक कर सकता है। वैसे युद्ध का नियम है कि अगर आप युद्ध नहीं कर रहे हैं तो दूसरी पार्टी को भी आप पे अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी युद्ध में कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो कभी कभी युद्ध में लोग गलत रूल्स को ब्रेक भी कर देते हैं। तो हो सकता है कि मैं इन लोगों पे अटैक नहीं करूं, ये लोग मुझे अटैक कर दें, तो उस स्थिति में भी मैं मरना ही ज़्यादा पसंद करूंगा। 35 वर्स। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् न का प्रीति स्यात् जनार्दनः। अपि भी, त्रिलोक्य, त्रिलोकी, all three words, राज्यस्य का रेंस, का राज्य, हेतु के लिए, के हित के लिए, अगर वो भी मुझे मिल जाए, विनिमय में, हिंदी में शब्द है विनिमय, हेतु एक्सचेंज में। किम नो मही कृते, किम क्या कहा जाए, मही कृते पृथ्वी के लिए, मही मतलब पृथ्वी, धरती, कृते फॉर द सेक ऑफ अर्थ। अर्जुन कहते हैं, केवल धरती क्या, मुझे इस युद्ध के बदले में, सारी पृथ्वी के बदले में, सारी पृथ्वी की अपेक्षा के बदले में अगर मुझे त्रिलोकी का भी राज्य मिल जाए तो भी, अर्थात ओ मेंटेनर ऑफ द लिविंग एंटिटीज, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the 3 words, let alone this earth. इतना बड़ा मन तो केवल एक भक्त का ही हो सकता है। निहत्य धार्तराष्ट्रान् नः,
निहत्य, निहत्य अर्थात मारकर, आफ्टर किलिंग। धातराष्ट्रान, इसे मैंने बताया था, धृतराष्ट्र, धातराष्ट्र, धातराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र। पृथा एक लेडी का नाम है, पार्थ पृथा का पुत्र। ये संस्कृत में टर्मिनोलॉजी होती है। तो का प्रीति, का क्या, प्रीति प्रसन्नता, खुशी, हैप्पीनेस, स्यात्, स्यात् जनार्दन, इसकी संधि है स्यात् जमा जनार्दन। स्यात् मीन्स होगी, विल देयर बी, जनार्दन, जन आर्दन, जनार्दन मतलब जीवों के पालनहारे, जीवों के पालन करता, मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। यहाँ पे अर्जुन को थोड़ा सा है कि कृष्ण उनको कह सकते हैं कि अर्जुन तुम लड़ो, तो वो अपने तर्क दे रहा है कि आप तो खुद ही जनार्दन हैं, जीवों के पालक हैं, तो आप भी मुझे इस युद्ध के लिए प्रेरित मत करिएगा। क्यों? क्योंकि भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमको क्या मिलेगा? कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? What pleasure will be derived from killing the sons of Dhritarashtra? Next we come to the next verse, 36, 36वां वर्स श्लोक पे हम आते हैं। पापम एव आश्रयेद, थोड़ा सा बड़ा शब्द है, आप अपनी पुस्तक में इसकी संधि मार्क करिएगा। पहले मैं इसको कोशिश करूंगी फुल पढ़ने की, फिर संधि ब्रेक करके पढ़ूंगी। पापमेवाश्रयेद अस्मान् हत्वैतानतायन तस्मानार्हा वयम हन्तुं धातराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अब हम इसे ब्रेक करके एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए बढ़ते हैं। पापम यानी वाइसेस, रॉन्ग डूज, एव निश्चय ही, डेफिनेटली, आश्रयेद, इसको हम ब्रेक करेंगे आश्रयेत, पापम एव आश्रयेत, लगेगा, मस्ट कम अपॉन अस, अस्मान हमको, अस्मान हमको, हत्वा मारकर, एतान इन सब, आततायिनः आतताइयों को। अर्जुन जानते हैं कि ये लोग सही तो नहीं है, ये लोग आतताई हैं, एग्रेसर्स हैं, रॉन्ग डूअर्स हैं। If we will go through the story of Mahabharata, we will realize that Duryodhan and his friends have done a lot of misdeeds against Pandavas. So they are definitely आतताई, aggressors. लेकिन हम कहते हैं ना, गंदगी में हाथ डालोगे तो हाथ गंदा हो जाएगा। तो उसी तरह से अर्जुन कह रहे हैं, इन गंदे लोगों को, बुरे लोगों को मारकर, इन आतताइयों को वध करके हम पर ही पाप चढ़ेगा। पापम एव आश्रयात अस्मान हत्वा एतान आततायान। संस्कृत इतनी कठिन नहीं है। आई होप इन वीडियोस से आप लोग थोड़ा थोड़ा संस्कृत, जो हमारी ग्रंथों को पढ़ने के लिए चाहिए, उस संस्कृत को पढ़ने की क्षमता भी डेवलप करेंगे। Sin will overcome us if we slay such aggressors. अर्जुन, शायद इस सेंटेंस से ऐसा लगता है कि अर्जुन चाहते हैं कि मैं न मारूं, मुझे इनका पाप नहीं लगे, कृष्ण स्वयं भगवान, श्री भगवान खुद इनको मार दे। लेकिन अर्जुन भूल रहे हैं कि श्री भगवान ने तो उनको पहले ही मार दिया है। जो हमारा डेस्टिनी है वो तो प्री डिसाइडेड है। वी थिंक दैट वी आर द डूअर्स, बट डेफिनेटली वी आर नॉट। वी आर जस्ट मीडिएटर्स। ये चीज़ आगे श्री कृष्ण आने वाले चैप्टर्स में इस चीज़ को और उजागर करेंगे, ओपन अप करेंगे। तस्मान न अर्हा, तस्मात अतः, therefore, न कभी नहीं, अर्हा, अर्हा मतलब डिजर्विंग, योग्य, हम वयम हम, हंतुम मारने के लिए, टू किल देम, धातराष्ट्रान स बांधवान, धातराष्ट्र के, धृतराष्ट्र के पुत्रों को और उसके मित्रों को। इसलिए अर्जुन कहते हैं
therefore, तस्मात्, अतः, therefore, न आर्हा, नहीं, no, we should not kill, vayam hantum, we are no one to kill them. We are no one to kill them. किसको किल करना है? धृतराष्ट्र के पुत्र और उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra, now friends. अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें. स्वजनम ही कथम हत्वा, स्वजनम, अपने लोगों को, अपने परिवार, अपने मित्रों को, ही, डेफिनेटली, कथम, कैसे, हाउ कम, हत्वा, मारकर, सुखिनः, सुखी, हैप्पी, श्याम, होंगे. श्याम इज अ वर्ब हियर, होंगे मीन्स वील बिकम माधव. माधव शब्द अर्जुन जो है बहुत ही तरीके से कृष्ण के नाम भी यूज़ कर रहे हैं. जैसा हमारा भाव होता है वैसे ही हमारा, जैसे हमारा कोई बच्चा या हमारा कोई रिलेटिव होता है क्लोज, उसको हम, जो हमारा मूड होता है उसके हिसाब से हम नाम लेते हैं. तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं माधव. माधव यानी कृष्ण, हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, श्री लक्ष्मी जी. तो आप तो फॉर्च्यून को लाते हैं अपने साथ, लक्ष्मी को लाते हैं अपने साथ. तो आप तो समझ सकते हैं कि मैं इतना एंग्शियस क्यों हूँ. ये सब जो होने वाला है यहाँ पे, उससे फॉर्च्यून चला जाएगा. तो आपसे अच्छा तो इस बात को कोई समझ ही नहीं सकता. स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव. हे लक्ष्मीपति कृष्ण, हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं. ओ कृष्ण, husband of the goddess of fortune, what should we gain, and how could we be happy by killing our own kinsmen? अगले वर्स पे आते हैं. यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहता चेतसः कुलश्रय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्. संधि मैं तोड़कर आपको बताती हूँ. यदि अपि एते, यद्यप्येते, यदि अपि एते, यदि, इवन दो, अपि, भी, एते, ये लोग, दीज पीपल, न पश्यन्ति, नहीं देख पा रहे हैं, लोभ, उपहत चेतसः, क्यों नहीं देख पा रहे हैं, ये लोग नहीं देख पा रहे हैं. और क्यों नहीं देख पा रहे हैं? लोभ, उपहत चेतसः. लोभ मीन्स ग्रीड, उपहत ओवरपावर्ड, अभिभूत, चेतसः इनका हृदय, देयर हार्ट्स, इनके हार्ट्स जो हैं कंपैशन, नॉर्मल जो डिजायर्स होती है उनसे फुल नहीं है इस टाइम. दे आर ऑल ओवरवेल्म्ड विद greed and bad desires. So they are not able to see, they are not able to foresee. Kulashraya kratam. Kulashraya means kul ka nash, killing of the family. Kritam, किया हुआ, done. दोषम, दोष, गलती, sin. मित्र द्रोहे, मित्र को मारना, किलिंग ऑफ फ्रेंड, च पातकम. पातकम शब्द है पाप के लिए, ठीक है, गलत काम के लिए. हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले, लोभ उपहत चेतसः, ये लोग अपने परिवार को मारने, कुलश्रय कृतम, कुलश्रय अपने परिवार को मारने के पाप, दोष, या फिर मित्र द्रोहे च, मित्र को द्रोह करने, मित्र के साथ गलत काम करने में पातकम, पाप नहीं देखते हैं. लोभ से अभिभूत चित्त वाले लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देख रहे हैं. These men, their hearts overtaken by greed,
See no fault in killing one's family or quarreling with friends. कथम न गेयम अस्माभिः पापात् अस्मान् निवर्तितुं कुलश्रय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दनः। तो अर्जुन ग्रीफ में ज्ञान की बातें कर रहे हैं। जब हम बायस्ड हम सुख से भी हो सकते हैं, दुख से भी हो सकते हैं, तो ज्ञान की बातें थोड़ी सी गड़बड़ा जाती हैं। हम जो लॉजिक्स होते हैं गलत सिचुएशंस में अप्लाई करने लगते हैं। द सेम थिंग इज हैपनिंग इज विद अर्जुना हियर। Even though he is a devotee, he is a very knowledgeable man, he is a very generous, compassionate man, but he is applying compassion to wrong situation. So let's see. कथम न ज्ञेयम अस्माभिः, कथम क्यों नहीं, न ज्ञेयम हमें तो समझना चाहिए, जानना चाहिए, we should understand. अस्माभिः हमको, पापात अस्मात् निवर्तितुम पापात इन पापों से, फ्रॉम दीज सिंस, अस्मात् दीज, निवर्तितुम शुड स्टॉप, बंद करने के लिए, कुल श्रय कृतम कुल का, वंश का नाश होने पर दोषम अपराध होता है, प्रपश्य भी देखने वालों के द्वारा, वी कैन सी। जनार्दन वो कह रहे हैं हम लोग, इन लोगों के जो हार्ट्स हैं वो तो लोभ उपहत चेतसः हैं, उनके जो हार्ट्स हैं दे आर ओवरटेकन बाय ग्रीड, बाय लोभ के द्वारा उनके हार्ट्स फुल हैं। लेकिन हम तो देख सकते हैं, हम लोग जो अभी अपनी सैंक्टिटी मेंटेन किए हुए हैं, जो परिवार को नष्ट करने में जो अपराध होगा, आगे जो गलत होगा, उसको हम फोर्सी कर पा रहे हैं, देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो? Why should we who can see the crime in destroying a family engage in these acts of sin? क्या होगा फैमिली के नष्ट होने से? ये हम देखते हैं। कुल श्रये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम अधर्मो अभिभवत्युतः। अर्जुन अब ज्ञान की बातें कह रहे हैं जो सही हैं, लेकिन डेफिनेटली सिचुएशन जहाँ पे ये ज्ञान अप्लाई हो वो रैशनल नहीं है। कुल श्रय, कुल का नाश होने पर, प्रणश्यन्ति, प्रणश्यन्ति नष्ट शब्द से बना है, नष्ट हो जाती है, विनष्ट हो जाती है। कुल धर्मा, परिवार का जो धर्म है, परिवार का जो ट्रेडिशंस है, रिलीजन है, वो सब नष्ट हो जाता है। सनातनः शाश्वत, सनातन शाश्वत, धर्मे नष्टे, धर्म नष्ट होता है। कुलम, कुलम परिवार का, कुल का, फैमिली का। कृत्सनम, कृत्सनम मीन्स होल। अधर्मो, अधर्म इज रिलीजन। अभिभवती, भव शब्द से बना है, भव मतलब होना, अभिभवती बदल देता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। उतः, इसकी संधि एक बार फिर से बताती हूँ। कृत्सन धर्म अभिभवती उत। अर्जुन कहते हैं कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। With the destruction of the dynasty, the eternal family traditions are vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion. इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी। जब युद्ध में कौन नष्ट होगा? युद्ध में घर के बड़े ही जाएंगे, बच्चे और स्त्रियां तो नहीं जाती हैं जनरली। तो इस युद्ध में जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल के बड़े नष्ट हो जाएंगे, तो कुल के जो ट्रेडिशंस हैं, फैमिली के जो ट्रेडिशंस हैं, धर्म है, आचार व्यवहार है, रीति रिवाज हैं, वो सब बड़ों के साथ ही नष्ट हो जाएंगे। बच्चों को सन्मार्ग, सधर्म, सनातनी परंपरा पे लाने वाला कोई बचेगा ही नहीं।
जनरली वैसे भी फैमिलीज़ में क्या होता है, बड़े होते हैं, वो जन्म, मृत्यु, शादी, विवाह और अन्य इम्पोर्टेंट जो जितने भी उत्सव या जितने भी ह्यूमन लाइफ के पड़ाव होते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं ट्रेडिशन से। हम कहते हैं घर पे, हम कहीं भी रह रहे हो, कहीं बाहर काम के सिलसिले में रह रहे हो या छोटे हो, स्कूल में हो, घर में बड़े हैं वो कर रहे होंगे। जब कुछ भी होता है तो घर में बड़े बूढ़े आते हैं, रिलेटिव्स की तरफ से आते हैं, या फ़ोन पे हम पूछते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कि क्या क्या ट्रेडिशंस हैं। तो हम जो छोटे होते हैं वो उन चीज़ों से काफ़ी हद तक फ्री रहते हैं और अपनी बाकी चीज़ों पे हम आ, कर पाते हैं। अब कलयुग में ये ज़्यादा हो गया है। पहले तो गुरुकुल परंपरा के हिसाब से सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को सिखाई जाती थी। अब तो हमें बच्चों को इवन इनफैक्ट 30-40 ईयर्स तक भी कुछ नहीं मालूम होता है कि क्या ट्रेडिशंस हैं फैमिली के। तो सब कुछ, पहले तो भी बच्चे सब चीज़ों को समझते थे, अब तो बिल्कुल ही सब नष्ट हो गया है। तो अगर घर के बड़े नहीं होंगे तो फैमिली ट्रेडिशंस को बच्चों को कौन बताएगा, फैमिली ट्रेडिशंस आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अर्जुन यही कह रहे हैं कि with the destruction of the family, the dynasty, the eternal family traditions are halted, and when there is nobody who is the torch bearer in the family, then the juniors in the family will become degraded. They'll Nobody would be there to teach them good things, and probably they may get engrossed in wrongdoings also. This will lead to the fall of the family, कुल। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में मैं मिलूँगी आपको अगले कुछ वर्सेस के साथ, एंड होपफुली श्री कृष्ण की कृपा रही तो हम पहले पार्ट को पूरा कर लेंगे। आपसे फिर से बहुत ही विनम्र अनुरोध है कि अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, आपके सुझाव हो, या कुछ भी आपके मन में डिटेल्स जानने की इच्छा हो, तो डेफिनेटली मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू। नमस्ते।